میانمار کے وزیر خارجہ تھان سو کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات۔ وزارت خارجہ آمد پر اسحاق ڈار نے معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ پاکستان اور میانمار کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات شیڈول۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا پاکستان اور میانمار کے تعلقات احترام اور طویل تاریخ پر مبنی ہیں۔ دورے کے بہترین نتائج سامنے آئیں گے۔ پشاور ہائی کورٹ میں حلف برداری تقریب، مستقل 6 ججز نے حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ایس ایم عتیق نے حلف لیا۔ گل پلازہ میں ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن 9 روز بعد مکمل۔ عمارت کے ملبے سے 2 مزید افراد کی لاشیں نکال لگی۔ سانحے میں جاں بحق افراد کی تعداد 73 ہو گئی۔ ڈی این اے کی مدد سے مزید 1 لاش کی شناخت، تعداد 23 لاشوں کی ہو گئی۔ 79 میں سے صرف 6 افراد لاپتہ رہ گئے۔ آپریشن مکمل ہونے پر عمارت سیل کر رہے 13 افراد کے لواحقین نے رابطہ کیا اور نہ ہی ڈی این اے نمونے لیے۔ ڈی سی جاوید نبی خوسو نے کہا 55 افراد کے لواحقین نے ڈی این اے نمونے جمع کرائے۔ معاوضوں کی ادائیگی کے لیے حکومت کو 30 لاشوں کا ڈیٹا بھیج دیا گیا۔ ورثہ میں جلد چیک تقسیم کیے جائیں گے۔ بھی ان لواحقین کو چکر کھلا رہی ہے، ان کی ماؤں بہنوں اور ان کی بیویوں کے آنسو شدت سے بلک رہے ہیں۔ میں ابھی اس والدہ سے اندر مل کر آیا ہوں جس کے آنسو نہیں تھم رہے۔ یہ خود اپنے بھائی کے ساتھ گل پلازہ میں موجود تھا۔ جو کچھ وہاں ہوا اس پر ہم سیاست نہیں کر رہے، لیکن یہ کون سی بات ہے کہ بات بھی نہ کریں، اور بات کریں تو کہیں سیاست نہ کریں۔ یعنی بات نہ کریں اور سیاست نہ کریں کا مقصد صرف ایک ہے کہ بات نہ کریں۔ جو ہو گیا، مٹی ڈالو۔ کہا جا رہا ہے کہ سانحہ گل پلازہ پر بات نہ کریں، یہ بتائیں کہ کراچی کی عوام کو انہوں نے اتنے سالوں میں کیا دیا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے کہا خدارہ سانحہ گل پلازہ پر سیاست بند کریں، لواحقین کو چکر لگوانے کے بجائے ہیلپ کاؤنٹر قائم کریں۔ اگر سیاست کرنی ہے تو شوق سے کریں، مگر پہلے متاثرین کی مدد کریں۔ خاص طور سے جو تاجر تنظیم انجمن گل پلازہ کی ہے انہیں اعتماد میں لیں، اور جو لوگ مسنگ ہیں ان کے اہل خانہ کو خاص طور پہ مطمئن کریں۔ گنتی کو پورا کریں۔ گنتی پورے کیے بغیر لوگوں کو چین اور اطمینان نہیں ہوگا۔ جو لوگ جاں بحق ہوئے، شہید ہوئے، ہم ان کے لیے دعا گو، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، انہیں طریقے رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے، انہیں جوار رحمت میں جگہ دے۔ ان کے اہل خانہ لواحقین پسماندگان کو اللہ تعالیٰ بہت صبر دے، صبر جمیل دے، بہت ہمت اور حوصلہ دے۔ گل پلازہ قومی سانحہ ہے، 100 سے زائد انسانی جانیں ضائع ہوئیں، تاجروں کا اربوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما فاروق ستار نے کہا وزیر اعلیٰ سندھ سانحے پر قوم اور تاجر برادری کو اعتماد میں لیں۔ کراچی کے لوگ کب تک لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما حیدر عباس رضوی کی بھی ارکان اسمبلی کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ بولے 20 سال میں حکومت سندھ نے کراچی کو برباد کیا، 25,000 ارب روپے خرچ کہاں ہوئے؟ 15 سال میں اس کا حکومت جواب دے۔ کراچی بچاؤ مہم کا آغاز کیا تھا، اور اس کراچی بچاؤ مہم میں کراچی کے وہ تمام مسائل جو کہ پچھلے 20 سالوں میں اس حکومت سندھ نے کراچی کو برباد کیا، اس کی بنیاد پر وہ تمام مسائل اٹھانے، ان کی آواز کو قومی اسمبلی، سینٹ، سندھ اسمبلی اور پاکستان کی دیگر اسمبلیز تک۔ پاکستان میں پاسپورٹ کے جدید مانیٹرنگ سسٹم کا افتتاح، ایمرجنسی ٹریول ڈاکومنٹ کا نظام بھی ڈیجیٹل کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ڈائریکٹوریٹ جنرل آف امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کا دورہ، ای مانیٹرنگ روم، کال سینٹر، فرانسنگ لیب اور پروٹیکشن یونٹ کا جائزہ۔ محسن نقوی نے کہا پاکستان میں اب اپلائی سے ڈیلیوری تک ہر مرحلے کی نگرانی ہوگی۔ پاسپورٹ سسٹم کو اب انٹرنیشنل معیار کے مطابق ڈھال دیا۔
नए निजाम से पासपोर्ट डिलीवरी की रिलेबल टाइम मॉनिटरिंग होगी। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ दोस्ताना और तमीरी तल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। हमारी शराकतदारी बाहमी एहतराम और मुश्तरका जमहूरी इक़्तिदार पर मबनी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का ऑस्ट्रेलिया के कौमी दिन पर पैगाम। ऑस्ट्रेलिया के कौमी दिन पर गवर्नर जनरल और अवाम को मुबारकबाद दी। कहा, तजारत, सरमायाकारी और तलीम के शोबों में ताउन मजीद फरोग पाएगा। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ अमन और मुश्तरका खुशहाली के लिए करीबी ताउन के लिए पुरअज़्म है। छब्बीस जनवरी भारत में बतौर योम जमहूरिया मनाया जाता है। ताहम मकबूजा जम्मू और कश्मीर में यही दिन ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाता है, जो 26 जनवरी 1950 को उनकी मर्जी और रजामंदी के बगैर मुसल्लत किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की तस्लीम शुदा करारदादों के मुताबिक जहाँ अवाम को अपने मुस्तकबिल का फैसला आज़ाद और गैर जानिबदार राय शुमारी के जरिए करना था। भारतीय मजालम के खिलाफ लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ एहतजाज। कश्मीरी अवाम भारतीय योम जमहूरिया को योम सियाह के तौर पर मना रहे। छोटे बड़े शहरों में भारत मुखालफ एहतजाज और रैलियां। मुकर्रिरीन ने कहा, भारत जमहूरियत नहीं, हार मलिक मकबूजा जम्मू कश्मीर पर 78 बरसों का गासिबाना कब्जा कर रखा। जुल्म के तरीक शब का जल्द खात्मा होगा। नाहल मोदी के ज़ेर इक़्तिदार भारत अंदरूनी खलफशार और नाकाम खारजा पॉलिसी की बदौलत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार। भारतीय सियासतदान और साबिक सेनेटर शानिता चित्री ने भारतीय नाकामियों और आलमी सतह पर तन्हाई को बेनकाब कर दिया। शानिता चित्री ने कहा, खोखले नारों के बरक्स भारत की मईशत, खारजा पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर संगीन सवालात। मोदी के तमाम सफारतकारी हकायक के मुनाफी और झूठे दावों पर मबनी है। भारतीय सियासतदान ने झूठे और बुलंदो बांग दावों की बजाय बढ़ते टैक्सेस और बेरोजगारी को अयां कर दिया। तालिबान की अवाम दुश्मन पॉलिसी और इंसानी हकूक की पमाली ने अफगानिस्तान को शदीद इंसानी अलमे की तरफ धकेल दिया। नाजायज तसल्लुत बरकरार रखने के लिए जाबराना हथकंडे, शरपसंद अफगान टोले का वतीरा। अफगान रजीम के बढ़ते तशद्दुद और दबाव पर अवाम खौफ और तशवीश में मुब्तला। टैक्सी गाड़ियों में खवातीन को ले जाने पर पाबंदी। तालिबान के खौफ से ड्राइवर अक्सर इनकार कर देते हैं। सरकारी मुलाजमीन को मुख्तलिफ हीले बहानों से बिला जवाज गिरफ्तार किया जा रहा। अफगान जरीदा हश्त सुद के कई इंकशाफात सामने आ गए। लाहौर प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात। अरशद अंसारी सदर, अफजाल तालिब जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। वजीर इत्तलात अता तारर और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से मुबारकबाद। नौ मुंतखब क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, प्रेस क्लब सहाफ़ियों की मजबूत आवाज़ है। सहाफ़ी बरादरी की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे।
औरकजई मसनूंग कुरम में शदीद बारिशों और बर्फबारी के दौरान पाक फौज ने अमदादी कार्रवाइयां जारी रखी। दौर इफ्तिदार इलाकों में पाक फौज ने बंद रास्ते हंगामी बुनियादों पर खोल दिए। मुसाफिरों और गाड़ियों को बाहिफाजत निकाल कर महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया। रास्तों की बंदे से नकलो हमल के साथ साथ वफात पाने वाले अफराद की तदफीन भी नामुकम्मल मरहला था। मुकामी हमायदीन और अवाम का पाक फौज के इस हमदर्दाना और बर वक्त इकदाम पर शुक्रिया। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में शिरकत न करने का हतमी फैसला आज होगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ICC के दोहरे मेयार को मुस्तरद करता है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड कप के हवाले से खिलाड़ियों को इत्मीनान में लिया। कहा, क्रिकेट असूलों पर सबको कायम रखना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान जो फैसला करेगी हम इस पर अमन अमल दरामद करेंगे। खिलाड़ियों ने चेयरमैन PCB के असूली मौक़िफ़ को सराहा। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा कौमी क्रिकेट के कप्तान मुकर्रर। 15 रुकनी स्क्वाड में बाबर आजम, फखर जमान, फहीम अशरफ शामिल। ख्वाजा नफे, साहबजादा फरहान, सलमान मिर्जा, उस्मान खान और साइम अयूब भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। 7 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज होगा। थे वो बाइट सारे निकल आए हैं कि किसने जाना है, क्योंकि ऑलरेडी सबको पता है कि कौन सी टीम ने जाना है। क्योंकि आपने हारिस को नहीं रखा, आपने रिजवानी को नहीं रखा। हारिस का जो है ना बहुत बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग के शोबे में। कभी अभी आप देखें बिग बैश में उसने टॉप विकेट टेकर रहा है, वहाँ भी जो होती है ना जेन्युइन क्रिकेट होती है, पूरी मेहनत के साथ उसने आउट किए हैं। वो सबसे बड़ा एशिया कप का हीरो था ना, वो था, चाहे मैं वो फाइनल हार गए, मगर ये है कि उसने जो बॉलिंग की थी ना उसके बिना पे मैं बात कर रहा हूँ, हारिस रऊफ का टीम में होना बहुत जरूरी था, बहुत लाजमी था। हारिस रऊफ और रिजवान को टीम से आउट करना मुनासिब फैसला नहीं। हारिस की शानदार बॉलिंग से टीम को वर्ल्ड कप में काफी फायदा हो सकता है। साबिक कौमी क्रिकेट आमिर नजीर की 7 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कौमी टीम को भारत के खिलाफ भरपूर परफॉर्म करने का मशवरा दिया। कहा, हम चाहते हैं कि दूसरे जिस मुल्क की टीम से बाहर जाएं, मगर भारत से हारना नहीं चाहिए। शहीनों याद रखे, कौम को ICC ट्रॉफी का शिद्दत से इंतजार है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी भी ICC के दोहरे मेयार पर बोल पड़े। शाहिद अफरीदी ने कहा, साबिक इंटरनेशनल क्रिकेट की हैसियत से ICC की पॉलिसी में तसलसल ना होने की वजह से इन्हें मायूसी हुई। ICC ने 2025 में पाकिस्तान का दौरा न करने के लिए भारत के सिक्योरिटी खदशात को तस्लीम किया, लेकिन बांग्लादेश के मामले में इसी चीज़ को समझने पर आमादा नहीं। तसलसल और बराबरी आलमी क्रिकेट गवर्नेंस की बुनियाद है। बांग्लादेश के खिलाड़ी और उसके लाखों फैंस के साथ नाइंसाफी होगी। और स्कार्फ पराक्रम विंटर 11 सीजन 8 का शानदार इख्तिताम। स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन टीम ने जीत कर अपना नाम कर ली। मुख्तलिफ इलाकों के खिलाड़ियों ने विंटर स्पोर्ट्स इवेंट में शानदार खेल पेश करके अपनी महारत का लोहा मनवाया। सकाफत और खेलों का हसीन मलाप शायकीन के लिए काबिल दीद रहा। स्कार्फ की काविशों ने गिलगित बल्तिस्तान की विंटर स्पोर्ट एंड एडवाइजर टूरिज्म को आलमी सतह पर फरोग देने में नुमायां किरदार अदा किया।